वेलकम बैक। बलूचिस्तान हमारी तकदीर, हमारे माथे का झूमर है। 1500 बंदे कहते हैं हम इसको ले जाएंगे, उनकी 10 नस्लें भी नहीं ले जा सकती। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा कोई समझता है ये 1500 दहशतगर्द हमें जेर कर लेंगे, वो जान ले हम उन्हें बहुत जल्द बदतरीन शिकस्त से दो चार करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा यह सवाल नहीं बनता कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान कब उभरेगा, पाकिस्तान पहले ही तरक्की की राह पर चल रहा है। सवाल ये है कि आप कितनी तेजी और कितनी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारे शानदार सफीर हैं। कुछ लोग उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर तनकीद करते हुए कुरान पाक की आयत का हवाला दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कुरान तहकीक का हुक्म देता है और सोशल मीडिया वाले हर चीज आगे बढ़ा देते हैं। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. To them, they must hear me very clearly. You think terrorists can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal cannot intimidate us, cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. You think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. As long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. Pakistan hamesha zindabad. It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the committee of the nation. And we will be there, inshallah, regardless of all these difficulties. कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place. Come on, is it just a brain drain? Is it not the brain gain? We have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? If this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. They have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country. जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, everything is being done as per the constitution, is a hard state. का मैं कह रहा था आपका मजहब क्लियर लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड।
ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में मजमा पुरजोश था। सेनेटर फैसल वाडा के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कहा, कन्वेंशन में नारे लगाए, आर्मी चीफ कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आर्मी चीफ ने कहा 1500 दहशतगर्दों से डरने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की ट्रेन उलट गई थी, अब वो पटरी पर आ गई है। पीटीआई के बाहर मौजूद क़यादत बानी को अंदर रखना चाहती है। ओवरसीज मैंने देखा तो उसमें क्राउड था, वो चार्ज था, इतना चार्ज क्राउड के आसिम मुनीर कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी। एक पीआई का जहाज है जिसका पहिया है ही नहीं, वो तूफान और बारिश के अंदर टेक ऑफ भी कर गया, उड़ भी रहा है और लैंड भी कर रहा है और उसको चीफ चला रहा है। उसका बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है, उनको हो रहा है, उनकी पार्टी को हो रहा है, जमहूरियत को हो रहा है। व्हाई नॉट? वो भी उतनी ही ओवरवेलमिंग तरीके से उसको इंडोर्स कर रहे थे। जिनके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी है मुल्क की, उसके सरबराह खुद कह रहे हैं, अपनी कल की तकरीर में भी कह रहे हैं कि 1500-1800 आदमियों से आपको डरने और घबराने की जरूरत थी। यह अल्लाह के बाद हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की ट्रेन उलट गई थी, वो पटरी पे आके खड़ी हो गई है। पीटीआई की जो क़यादत बाहर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जमानती है नून लीग की, और वो जितना अरसा इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहेगी या खुदा न खास्ता कुछ और करवाना चाहेगी तो उनको फायदा है। झगड़ा है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, पीटीआई पाकिस्तान में सिकंदर की तलाश का, उसकी दौड़ का, और उस सिकंदर का फैसला उसके मुकद्दर में करना है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद में बारिश और ग्यालाबारी, ओले पड़ने से गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। बारिश के साथ तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। ओलों की जद में आकर फैसल मस्जिद के शीशे चकनाचूर हो गए। रावलपिंडी में दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। पहले सूरज ने मौसम गरमाया, फिर बादल इस्लामाबाद पर बरसने आ गए। सुबह से गर्मी में झुलसते शहरी शाम को ओलों के निशाने पर आ गए। झक्कड़ चले, बादल गरजे और यकायक जालाबारी शुरू हो गई। बरसते ओलों ने दरख्तों को तो तबाह किया ही, गाड़ियों को भी ना बख्शा। गोल्फ बॉल साइज की बर्फीली गेंदों ने शीशे तोड़ दिए, बॉडियों में डेंट डाल दिए। ओलों की शिद्दत से फैसल मस्जिद के भी तमाम शीशे टूट गए। गैर मुतवक्का जालाबारी से जुड़वा शहरों में गर्मी का जोर टूट गया, जबकि शाम से जारी शदीद बारिश से सड़कें भी पानी पानी हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद सड़कें बह गईं। जिला खैबर में आबी रेलों से पाक अफगान शाहराह बंद हो गई, कई माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मानसहरा में तूफानी बारिश से बिजली की तारें गिर गईं, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला मोहम्मद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आजाद कश्मीर के शहरों मेंबर, कोटली और मीरपुर में शदीद बारिश से मौसम सर्द हो गया। पंजाब में भी जहलुम, डस्का और नारोवाल में बादल जमकर बरसे, जिससे कई सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफा। कौमी इदारा सेहत ने हीट और सन स्ट्रोक से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा, हीट स्ट्रोक से हिफाजत के लिए धूप, डिहाइड्रेशन से बचाव जरूरी है। गर्मी की हालिया लहर के पेश नजर हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ गए हैं। बरवक्त इकदाम न करने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। कौमी इदारा सेहत ने यह भी बताया, मुल्क में हीट वेव से नुकसानात में इजाफा हो रहा है। अवाम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गैर जरूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। यहाँ पर आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में नदी से 8 साल की बच्ची की लाश मिली। बच्ची के हाथ बंधे हुए थे। सवेरा के नाम से शनाख्त हुई। सवेरा गुज़श्ता रोज सुपर हाईवे सिकंदरगोट से लापता हुई थी। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान, अब तक क्या पता चल सका है? देखें, पुलिस को आज शाम को एक लाश मिली थी। लियाकताबाद की नदी से बीवान एरिया का इलाका है। लाश के पास जब पुलिस पहुंची तो हाथ इसके बंधे हुए थे। बच्ची की उम्र 10 साल के करीब बताई जा रही थी। पुलिस ने इस लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए बाती क्षेत्र अस्पताल मुंतकिल किया। घर वालों की तलाश की तो पता चला ये बच्ची सुपर हाईवे की रिहायशी है। सिकंदरगोट से गुज़िश्ता सुबह ये लापता हुई थी। घर के अंदर इनके वालिद रहते हैं और वालिद की भी तबीयत खराब थी। घर वाले कहते हैं, इसके बच्ची के रिश्तेदार कहते हैं कि दोपहर से इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन आज इसकी लाश
सुपर हाईवे से कई फासले पर वाक़े लियाकताबाद। सलमान, बताएगा इस बच्चे के वालिदैन करते क्या हैं और क्या बच्ची के गुमशुदा होने की कंप्लेन करवाई थी इन्होंने पुलिस में? देखिए, घर पुलिस को, जो लियाकताबाद पुलिस है वो ये कहती है कि इन्होंने पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर कोई दरखास्त तो नहीं दी, अलबत्ता इन्होंने पुलिस को बताया था कि एक बच्ची लापता हुई है, जिसके बाद ही लियाकताबाद पुलिस ने पता लगाया इस बच्ची का पोस्टमार्टम। तो सलमान, जब उन्होंने दरख्वास्त की थी तो क्या पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की? देखें, इस केस में पुलिस की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है। अगर पुलिस संजीदगी से इस केस पे काम करती तो कुछ मिल भी सकता था, लेकिन पुलिस ये कहती है गुज़िश्ता रोज इसकी तलाश के लिए कोशिशें की गई। आज जब इसकी लाश डूबी हुई मिली तो इब्तिदाई तौर पर पुलिस को शुबा था कि हो सकता है बच्ची खुद ही गिरी हो, लेकिन रेस्क्यू हुकाम ये कहते हैं कि बच्ची की जब लाश मिली थी तो उसके हाथ बंधे हुए थे, जिससे ये लगता है कि बच्ची को किसी ने फेंका, किसी ने नदी के अंदर फेंका हो। अब पुलिस ये कहती है कि इस बच्ची का पोस्टमार्टम जो कराया गया है उसकी हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही वजह मौत तो जो उसको देखा गया था, जब डॉक्टर्स ने देखा तो क्या बताया गया कि कोई तशद्दुद के निशानात वगैरह थे? देखिए, डॉक्टर्स ये कहते हैं क्योंकि बॉडी काफी देर डूबी रही है तो फौरी तौर पर तो ये बात नहीं सामने आ सकी कि इसमें तशद्दुद के निशानात हैं या कोई इस किस्म की कोई चीज की गई हो। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसकी मुकम्मल जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, केमिकल रिपोर्ट, वो उसके आने के बाद इसकी वजह मौत सामने आ सकेगी और दीगर। तो सलमान, जब उसके वालिदैन को इस हवाले से बताया गया तो उनकी जानिब से किसी शक का इजहार किया गया, किसी पे शुबा किया गया? देखें, अब तक बच्ची के वालिद का बताया गया है और वो उनके बारे में भी पुलिस ये कहती है कि वालिद घर में बीमार थे, बच्ची सुबह ये घर से निकली थी और उसके बाद से लापता हो गई थी। घर में मजीद कोई अफराद तो अब तक सामने नहीं आए। इनके रिश्तेदार सिकंदर कोट के रिहायशी अफराद कुछ सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई मजीद पुलिस से बात नहीं की। तो सलमान, वालिदैन क्या कहते हैं, बच्ची कहाँ के लिए निकली थी और क्यों निकली थी? देखिए, वालिदैन यही कह रहे हैं जो इन्होंने इब्तिदाई तौर पर पुलिस को बयान दिया था कि बच्ची घर के बाहर निकली थी और उसके बाद से ही लापता हो गई थी। ये लोग दिन भर अपने ही इलाके में इस बच्ची को तलाश करते रहे, शाम तक ना मिली तो उसके बाद इन्होंने पुलिस को इतला दी थी और पुलिस को दरखास्त दी थी। लेकिन पुलिस को इतला भी दी लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में ना आई। सलमान, इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए, फितना लोगों ने पहचान लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जब हम इक़्तिदार में आए तो कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या आज किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? आपने कहा समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला न भेजें, इतना ज़र मुबादला भेजा कि रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आला का कहना था मेयो और जुना अस्पताल से एमएस और प्रिंसिपल को निकाला तो भौचाल आ गया, किसी से नहीं डरती, जिसे निकालना पड़ा निकालूंगी। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। और आपने कहा पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो रेमिटेंसेस ना भेजें। पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा, इतनी रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने को लोगों ने पहचान लिया। मेयो हॉस्पिटल में गई और फिर मैं उधर गई जिना हॉस्पिटल, वहां पर मैंने एमएस को भी फारिग किया, प्रिंसिपल को भी फारिग किया। तूफान आ गया, भूचाल आ गया, वज़ीर आला ने खड़े खड़े लोगों को फायर कर दिया, जिसको भी निकालना पड़ा, फारिग करना पड़ा। मुझे कोई डर नहीं है। आपने मेरी जितनी तनकीद करनी है मेरे पे कर लो, लेकिन मुझे पता है मेरा फर्ज क्या है। हम तंग आ गए हैं, हमें तमाशा नहीं चाहिए। अडयाला जेल के बाहर हुजूम पर बानी पीटीआई की बहन परेशान। अलीमा खानम ने कहा जिनको बानी पीटीआई ने नहीं बुलाया वो ना आए, बानी को वकीलों से मिलने दें, उनका वक्त जाया न करें। तमाशा नहीं चाहिए, हम तंग आ गए इन तमाशों से। हमें इस वक्त अपने भाई के केसेस की फिक्र है, जिनको इमरान खान नहीं बुला रहा। वॉलंटरली आप शामिल ना हो, जहाँ पे इमरान खान को अपने लॉयर से रसाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जब हमारे लॉयर्स की मुलाकात हो जाए उनके साथ, वो आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद 100 बिस्मिल्लाह, सारी शाम दर्जनों लोग जाएं इमरान खान के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन लॉयर्स का टाइम का मतलब ये है कि हमारे लॉयर्स ने केसेस के बारे में बात करनी होती है, उनके स्पोक्समैन ने उनका मैसेज लाना होता है। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे का नाम M9 रखा गया, लेकिन हाल ये है कि दोनों तरफ की जालियां टूट गई हैं। शहरी पैदल चलते फिरते हैं। मोटरसाइकिल रॉन्ग वे पर दौड़ती नजर आती हैं। मोटरवे पुलिस तैनात है लेकिन कोई रोक टोक नहीं। तफसील बता रहे हैं नजीर शाह। बुध का दिन है और इस वक्त मैं सोराब कोट से माड़ीपुर जाने वाले रास्ते पर चढ़ा हूँ। M9 हुकाम है, उनके
दायरा कार में आती है। यहाँ पर लोग धड़ल्ले से पैदल चलते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तफरीह करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकल नीचे बातें कर रहे हैं किसी से। यहाँ अगर इनको कोई भी गाड़ी मार कर चले जाए, जिसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एक्सप्रेस वे पर भी कोई शख्स चल सकता है। सेफ्टी बैरिकेड्स कहीं हैं, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ग्रिलें भी चोरी हो जाती हैं। ये सेफ्टी बैरिकेड्स यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कोई भी हादसा होता है तो गाड़ी सीधा नीचे जाकर गिरेगी। आप यहाँ आने की फ़ीस देखें, 30 रुपये से अचानक से 40 हुई, 50 हुई, 60 हुई, फिर दिनों के अंदर 70 हो चुकी है। लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट के नाम पर क्या सूरत हाल है यहाँ की आप देख सकते हैं। ये लियारी एक्सप्रेस वे पे बाइक कैसे लेकर आए हुए हो आप? यहाँ पे दोस्त का घर है, उसको पिक करके दोबारा रिटर्न जा रहे हैं। मतलब फिर रॉन्ग वे जाओगे? ये सूरत हाल है भाई, ये सूरत हाल है। पूरे रास्ते पर मुझे एक कोरे गाड़ी में पेट्रोलिंग अफसर, वो भी हसन स्क्वायर के करीब नजर आया। ओ हो या अल्लाह, ये अचानक से रिक्शा सामने आ गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PSL 10 में शादाब खान और मोहम्मद रिजवान की टीमें आमने सामने हैं। रावलपिंडी में मैच गिली आउटफील्ड की वजह से 45 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। मुल्तान की दावत पर इस्लामाबाद की बैटिंग जारी है। 2 विकेट पर 80 से ज्यादा रन्स बना लिए गए थे और साहिबजादा फरहान की शानदार फॉर्म भी बेबरकरार है। सेंचुरी के बाद 50 भी बनाई। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस इस पोस्ट पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अभी की सिचुएशन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 112 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कराची किंग्स के खिलाड़ी आराम के दिन भी मसरूफ। ऑफ डे पर गोल्फ क्लब पहुंचे। कप्तान डेविड वार्नर, हेड कोच रवि बोपारा, जेम्स विंस और शान मसूद ने लंबे लंबे हिट्स लगाए। कराची का अगला मैच जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी परचम उतारने की वलवल अंगेज तकरीब। चेयरमैन PCB की दावत पर ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों ने तकरीब देखी। मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशियल्स रेंजर्स के जवानों की परेड से महजूज हुए। कौमी और मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे भी लगाए। खिलाड़ियों ने रेंजर्स के जवानों के साथ तस्वीर भी बनवाई। टीमों की कप्तानों को सुवेनियर भी दिए गए। और दुनिया की पहली लाइव स्ट्रीम नस्ल कुशी। अल जजीरा टीवी के तहकीकाती यूनिट ने गजा में इसराइली जंगी जुराइम के शवाहिद मुरतब कर लिए। जंगबंदी पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइली फोर्सेज ने गजा पर दोबारा कयामत ढा दी। 51,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी लापता हैं। अल जजीरा इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने इसराइली फौजियों की पोस्ट की गई वीडियोज और तस्वीर का जखीरा शेयर कर दिया। वीडियोज और तस्वीर जंगी जुराइम को बेनकाब करती हैं। फलस्तीनी नॉवल निगार सूजन अबू लहफा कहती हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है और ये पहली लाइव स्ट्रीम नस्ल कुशी है। इसराइली फौजियों ने गजा में तबाही की वीडियोज पोस्ट की, जो इसराइल के खिलाफ डिजिटल डोजियर बन गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जंगी जुराइम करने वाले वीडियोज में सबूत खुद फराहम कर रहे हैं। इसराइली फौजियों की फुटेज आलमी कानून की खिलाफ वर्जियों की दस्तावेज हैं। फुटेज बुनियादी ढांचे की तबाही, लूटमार, शहरियों को निशाना बनाना, गैर इंसानी जंगी हरबों का सबूत है।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान बांग्लादेश सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ढाका पहुंच गईं। बांग्लादेश की डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया इशरत जहां ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बांग्लादेश मीडिया ने बताया दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। बांग्लादेशी सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद जासिमुद्दीन और उनके पाकिस्तानी हम मनसब आमना बलोच इजलास की क़यादत करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाक बांग्लादेश सियासी मुशावरती इजलास आखिरी बार 2010 में मुनक़िद हुआ था। इस अहम पेशरफ से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।